মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট শুক্রবার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রায় দিয়েছে, যা শুধুমাত্র মধ্যপ্রদেশ নয়, গোটা দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক মহলে বড় আলোচনা তৈরি করেছে। আদালত হিন্দু পক্ষের দাবি মেনে নিয়ে ঘোষণা করেছে যে ভোজশালা আসলে একটি মন্দির। এই রায়কে অনেকেই ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং ধর্মীয় ইতিহাসের ক্ষেত্রে একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত হিসেবে দেখছেন। আদালত তার পর্যবেক্ষণে স্পষ্ট জানিয়েছে, ভারতের সংবিধান শুধু পুরনো স্থাপত্য বা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন রক্ষা করার কথা বলে না, বরং ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় গুরুত্ব থাকা সমস্ত পবিত্র স্থান সংরক্ষণ করাও সরকারের সাংবিধানিক দায়িত্ব। হাইকোর্ট বলেছে, সরকার কোনো বিশেষ ধর্ম বা রাজনৈতিক সুবিধার কথা ভেবে নয়, দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষার দায়িত্ব পালন করবে। আদালতের মতে শুধু পুরনো ভবনকে টিকিয়ে রাখাই যথেষ্ট নয়, কোনো ধর্মীয় স্থানের পবিত্রতা, ঐতিহাসিক পরিচয় এবং ধর্মীয় চরিত্র বজায় রাখাও সরকারের কর্তব্য। বিচারপতিরা বলেন, তীর্থযাত্রীদের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা তৈরি করা, নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখা এসবও সরকারের সাংবিধানিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আদালত বলেছে কোনো দেবস্থানের ধর্মীয় চরিত্র এবং দেবতার মর্যাদা রক্ষা করাও অত্যন্ত জরুরি। এই পর্যবেক্ষণকে অনেক আইন বিশেষজ্ঞ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন, কারণ এর মাধ্যমে আদালত বুঝিয়ে দিয়েছে যে ভারতের ধর্মীয় ঐতিহ্য শুধুমাত্র বিশ্বাসের বিষয় নয়, এটি দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতিরও অংশ। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা ভালো, এএসআই আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার তরফ থেকে যে তথ্য বা যে রিপোর্ট আদালতে পেশ করা হয়েছে, এএসআই এর সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই আদালত নিশ্চিত হয়েছে, হাইকোর্ট নিশ্চিত হয়েছে যে এই ভোজশালা আদতে একটি মন্দির। এই মামলার কেন্দ্রে রয়েছে মধ্যপ্রদেশের ধার জেলার বিখ্যাত ভোজশালা। বহু বছর ধরেই এই জায়গা নিয়ে হিন্দু এবং মুসলিম দুপক্ষের মধ্যে বিরোধ চলছিল। হিন্দুদের দাবি ছিল এটি প্রাচীনকালের একটি সরস্বতী মন্দির এবং সংস্কৃত শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র ছিল। অন্যদিকে মুসলিম পক্ষ একে কামাল মাওলা মসজিদ বলে দাবি করত। ভোজশালার ইতিহাস অত্যন্ত প্রাচীন এবং গুরুত্বপূর্ণ। ঐতিহাসিক তথ্য অনুযায়ী এটি একসময় রাজা ভোজের আমলে সংস্কৃত শিক্ষা, সাহিত্য এবং আধ্যাত্মিক সাধনার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল। রাজা ভোজ শুধু একজন শাসক ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন জ্ঞানী, দার্শনিক এবং সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক। ইতিহাসে তাকে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষিত রাজা হিসেবে ধরা হয়। হাইকোর্ট তার রায় বলেছে, বহু ঐতিহাসিক বই, নথি এবং প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে এই জায়গার নাম ভোজশালা ছিল এবং এটি সংস্কৃত শিক্ষার অন্যতম বড় কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। আদালতের মতে, প্রাচীন সাহিত্য, শিলালিপি এবং ইতিহাসের বিভিন্ন নথি হিন্দু পক্ষের দাবিকেই শক্তিশালী করে। আদালতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণগুলোর মধ্যে একটি হলো, ভোজশালায় হিন্দুদের উপাসনাও কখনো বন্ধ হয়নি। বিচারপতিরা বলেছেন, কোনো ধর্মীয় স্থানে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ধারাবাহিকভাবে পুজো বা ধর্মীয় আচার চলতে থাকলে সেটি সেই স্থানের ধর্মীয় চরিত্র নির্ধারণে বড় প্রমাণ হিসেবে গণ্য হয়। আদালত জানিয়েছে, নানা ঐতিহাসিক পরিবর্তন এবং প্রশাসনিক নিয়ম থাকা সত্ত্বেও হিন্দুদের ভোজশালার সঙ্গে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক কখনো ভাঙেনি। বহু বছর ধরেই সেখানে হিন্দুরা পুজো করে আসছেন। আইন বিশেষজ্ঞদের মতে এই পর্যবেক্ষণ ভবিষ্যতে দেশের অন্যান্য বিতর্কিত ধর্মীয় স্থান সংক্রান্ত মামলাগুলিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে, কারণ আদালত এখানে স্পষ্টভাবে বলেছে যে দীর্ঘদিন ধরে ধর্মীয় আচার চলতে থাকা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। হিন্দু পক্ষের আইনজীবী শিরিষ দুবে কি জানিয়েছেন এই রায় প্রসঙ্গে, শোনাবো আপনাদের। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिपालन में 6 अप्रैल 2026 से भोजशाला के मामले की सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर की डिवीजन बेंच के समक्ष लगातार चली है। माननीय न्यायालय ने 2:30 बजे से 6 अप्रैल से रोजाना 2:30 बजे इस मामले को सुनना शुरू करा था, जो 12 मई तक लगभग 24-25 दिन और 60 घंटे की बहस सभी पक्षों को धैर्यपूर्वक सुनने के बाद पहले न्यायालय ने क्रम तय करा था कि पहले पिटिशनर्स को सुना जाएगा, फिर रेस्पोंडेंट्स को सुना जाएगा, उसके बाद जो इंटरवीनर्स जो है, जो इसमें पक्षकार बनने के लिए एप्लीकेशन आवेदन आए थे, उनको सुना जाएगा। सभी पक्षों को अब सर्वे रिपोर्ट पर आपत्ति सुझाव की मांग करी गई थी, सभी पक्षों ने वो दिए हैं। मुस्लिम पक्षों ने अतिरिक्त मांग करी थी
कि हमको वीडियो दिखाया जाए, उसके बाद हम आपत्ति करेंगे, तो न्यायालय ने वो भी अनुमति दी और उन्होंने सर्वे रिपोर्ट पर आपत्ति ली। सभी लोगों ने एएसआई की जो रिपोर्ट है उस पर सुझाव, आपत्ति सभी चीज करने के बाद सभी पक्षों ने अपने अपने तर्क माननीय न्यायालय के रखने के बाद 12 तारीख को इस मामले की सुनवाई समाप्त हुई थी और आज 15 तारीख को ये मामला जो है देखिए मामला जो है ऐसे तो कई सदियों से इसका संघर्ष चल रहा है और 97 में एक पिटीशन लगी, 64 में एक पिटीशन लगी, पर मुख्य पिटीशन 2022 से जो लगी है हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस और कुलदीप तिवारी जी की जो पिटीशन थी उस चीजों उसके बाद ये मामला जो है गति पे आया है। 1 मई 2022 को इस मामला न्यायालय के समक्ष दोनों पिटीशन लगी थी, जिसमें 19 फरवरी को सभी पक्षों ने सर्वे रिपोर्ट पर अपनी बहस जो है हमने मांग करी थी। हमारी भी एक ये थी कि यहाँ पे सर्वे करा जाए। सभी पक्षों ने 19 फरवरी 2024 को जो है अपनी बहस खत्म करी थी और माननीय न्यायालय ने 11 मार्च को आदेश दिया था। হিন্দু পক্ষের আইনজীবীর বক্তব্য আপনাদের শোনালাম, এবার মুসলিম পক্ষের আইনজীবী আরশাদ ওয়ারসি তিনি কি বলছেন শুনুন। देखिए, हमने तो पहले दिन से एक ही बात पे हम अडिग है हमारी कि हमारे पास 700 साल का अनबार्ड और अनइंटरप्टेड पोजीशन है मुस्लिम पक्ष के पास और उसके दस्तावेज, तथ्यात्मक दस्तावेज 1935 का गजट और उसके अलावा के भी दस्तावेज जो ऐतिहासिक किताबें हैं, जो उस वक्त के इतिहासकारों ने किताबें लिखी हैं। तो जो बात ये कही जा रही थी बार बार कि मस्जिद जो माफ करिएगा कि मंदिर को तोड़ा गया है, उसको डिमोलिश किया गया है और उसके बाद फिर वहां मस्जिद बनाई गई है, तो ऐसा कोई तथ्य ना पेश किया गया है, ना ही कोई ऑनरेबल कोर्ट को कहीं दिखाया गया है। তো এই রায়ের পর স্বাভাবিকভাবে এক পক্ষের তরফ থেকে উত্তেজনার পরিস্থিতি তৈরি হলেও হতে পারে। তো এ প্রসঙ্গে পুলিশের তরফ থেকে কি বক্তব্য বলা হচ্ছে শুনুন। पुलिस धार की संपूर्ण जनता से निवेदन करती है कि शांति, सौहार्द और भाईचारा बनाए रखें। जो भी माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आता है उसका हमको पालन करना है। इसके लिए सिर्फ जिला मुख्यालय पे नहीं, बाकी पूरे ज़िले में, तहसील में, अनुभागों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। हम सब की नज़र उन लोगों पे है जो माहौल बिगाड़ सकते हैं या फिर अफवाहें फैला सकते हैं। जो भी इस प्रकार का दुष्कृत्य करने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। এবারে আপনাদের শোনাবো আজ তাকের প্রতিনিধি রবিশ পাল সিং তার প্রতিবেদনে কি বলছেন। धार शहर में फ्लैग मार्च पुलिस ने निकाला है और आप तस्वीरें दिखा देते हैं। ये फ्लैग मार्च है जो पुलिस की तरफ से निकाला जा रहा है। दरअसल ये मामला इतना संवेदनशील है कि पुलिस प्रशासन किसी भी तरीके का कोई जोखिम नहीं लेना चाहता है और इसीलिए आज पूरे धार शहर में ये पुलिस का फ्लैग मार्च निकल रहा है। पुलिस के साथ साथ अगर आप यहाँ देखें तो जो तमाम सुरक्षा बल है उन्हें भी यहाँ तैनात किया गया है। जिले के एसपी समेत यहाँ पे आप देखिए हथियारों के साथ पुलिसकर्मी आज इस फ्लैग मार्च में शामिल हैं और इसके जरिए एक तरीके से ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि कानून व्यवस्था के साथ किसी भी तरीके का खिलवाड़ जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पुलिसकर्मी हैं ये फिलहाल भोजशाला परिसर के आसपास अब फ्लैग मार्च कर रहे हैं और ये फ्लैग मार्च जो है राजबाड़ा से शुरू हुआ है और उसके बाद ये पुराने शहर से होता हुआ निकल रहा। आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मियों के साथ साथ बड़ी संख्या में यहाँ पे जो क्विक रिएक्शन फोर्स है और आरएएफ है उन्हें भी आज पूरे शहर में तैनात किया गया है और इसके जरिए एक तरीके से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कानून सर्वोपरि होगा, किसी भी तरीके की अफवाह जो है वो यहाँ पे ना फैल पाए और हालात तनावपूर्ण ना हो जैसे कि पहले भी कई बार हो चुके हैं धार में। और इसी के लिए फिलहाल ये भारी भरकम बंदोबस्त जो है पुलिसकर्मियों का यहाँ देखने को मिल रहा है धार में। और इस फ्लैग मार्च के जरिए पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि किसी भी तरीके की ऐसी स्थिति ना खड़ी हो पाए जो बाद में आगे चल के माहौल को तनावपूर्ण कर दे। इसीलिए फिलहाल बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों के साथ, जिसमें आपको दिखा दें कि इस फ्लैग मार्च में करीब 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी शामिल हैं जो कि धार शहर के पास से होते हुए जो पूरा इलाका है भोजशाला परिसर है वहां पे फ्लैग मार्च कर रहे हैं। আপনাদের মতামত জানাতে থাকুন, দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব চ্যানেলটি।